ایک عیسائی لڑکی جس کا نام مارتھا تھا، مسلمان ہونے کے بعد اس کا نام ہو جاتا ہے روبینہ مریم۔ مسلمان ہونے کے بعد کچھ دن ہی بعد وہ لڑکی قتل ہو جاتی ہے۔ آخر اس قتل کے پیچھے وجہ کیا ہوگی؟ احمد یار خان کی تفتیشی کہانی اور اس سچی کہانی کا چوتھے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ عبدالرشید کو خیال آیا کہ لاش کوئی آدمی سر پر اٹھا کر تو نہیں لایا ہوگا، ریڑھا تانگا استعمال کیا گیا ہوگا یا گاڑی پر لاش لائی ہوگی۔ عبدالرشید نے مجھے بتایا کہ وہ زمین دھول والی تھی، گھاس کی ایک پتی بھی نہیں تھی۔ صبح تماشائی اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے تمام کھرے مٹا ڈالے، یعنی کہ پیروں کے نشان مٹا ڈالے۔ عبدالرشید ایک ماہر سراغ رسان کی طرح ذرا دور دور گھوما پھرا اور اسے ایک چیز نظر آ گئی۔ یہ چیز تھی ایک موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان۔ ریس کورس کے بالکل قریب پکی سڑک گزرتی تھی۔ عبدالرشید نے دیکھا کہ ان ٹائروں کے نشان پکی سڑک سے اس طرف گئے جدھر لاش پھینکی گئی تھی۔ آگے لوگوں نے یہ نشان مٹا ڈالے۔ عبدالرشید نے کچھ دور جا کے دیکھا تو موٹر سائیکل کے نشان پھر نظر آئے۔ اب وہ گھوم کر واپس سڑک پر چلے گئے۔ ٹائروں کے نشان بڑے صاف تھے۔ جہاں موٹر سائیکل پکی سڑک پر گیا وہاں سڑک پر کچھ خون بکھرا ہوا تھا اور کچھ ٹوٹے ہوئے سے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار صبح تماشائیوں کو دیکھ کر ادھر گیا ہوا اور لاش دیکھ کر گھوم پھر کر سڑک پر آ گیا، لیکن یہ خون کیسا تھا اور یہ چھوٹے ٹکڑے کیسے تھے؟ سڑک کے دوسری طرف کچھ دکانیں تھیں۔ عبدالرشید نے ان دکانداروں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ رات ایک موٹر سائیکل کی ٹکر ایک فوجی ٹرک کے ساتھ ہو گئی تھی اور فوجی ٹوٹے ہوئے موٹر سائیکل کو اور اس کے سوار کو ٹرک میں ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے۔ عبدالرشید نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ ایکسیڈنٹ رات کو 3 بجے کے ذرا بعد ہوا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ موٹر سائیکل سوار رات 3 بجے ادھر آیا تھا۔ یہ بات شک پیدا کرتی تھی کہ ٹائروں کے نشان دیکھ کر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان ہیں اور یہ کار کے ٹائروں کے نشان۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائروں کے یہ نشان فلاں خاص موٹر سائیکل کے ہیں یا فلاں کار کے۔ عبدالرشید نے جن ٹائروں کے نشان دیکھے تھے ان میں ایک خاص بات تھی کہ ایک کی ٹائر دوسری کی نسبت زیادہ گھسا ہوا تھا اور اس میں شاید ایک جگہ ٹکڑا لگا ہوا تھا، یہ وہاں سے ٹائر پھٹا ہوا تھا۔ اس جگہ کا نشان زمین پر دیکھا گیا تھا۔ ایک چکر پورا کر کے یہ نشان زمین پر لگتا گیا اور اس سے خیال آیا کہ یہ ایک خاص موٹر سائیکل کے نشانات ہیں اور اس موٹر سائیکل والے کو پکڑا جا سکتا ہے۔ مجھے فوری طور پر ولسن کا خیال آیا۔ مقتولہ کی دوست لڑکیوں نے بتایا کہ ولسن موٹر سائیکل پر آتا اور مقتولہ کو پیچھے بٹھا کر لے جایا کرتا ہے۔ میرے ذہن میں جرم کا ارتکاب اس طرح بنا کر ولسن نے مقتولہ کو کہیں اور قتل کیا، پھر لاش دوہری کر کے بوری میں بند کی اور رات کسی وقت موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کر یہاں لایا اور یہاں پھینک کر چلا گیا۔ عبدالرشید کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سراغ رسانی میں خاص مہارت رکھتا ہے۔ میں نے اسے اپنا شک بتایا کہ یہ واردات ولسن نے کی ہے اور اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، لیکن عبدالرشید کہتا تھا کہ جہاں موٹر سائیکل سڑک پر چڑھا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شہادت یہ ملی کہ ایویڈنس ایک موٹر سائیکل ایک فوجی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ یہ وہی موٹر سائیکل تھا جس پر لاش لائی گئی تھی یا یہ کوئی اور تھا؟ عبدالرشید کے ساتھ تبادلہ خیالات کر کے ہم اس بات پر پہنچے کہ ولسن کا موٹر سائیکل دیکھ لیا جائے۔ ٹائر کا نشان ایسا تھا جو موٹر سائیکل کی بڑی واضح نشاندہی کرتا تھا۔ عبدالرشید کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوئیں اور اسے میں نے بست شکریہ رخصت کر دیا۔ اگلی صبح میں نے انسپکٹر کلارک کو یہ ساری بات بتائی اور کہا کہ عبدالرشید کا کیس میں ذکر نہ آئے۔ انسپکٹر کلارک نے شنکر داس کو انگریزی زبان کی گالی دے کر کہا کہ وہ اسے سب انسپکٹر نہیں رہنے دے گا۔ واردات کو کم و بیش 20 دن گزر گئے تھے۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ ٹائروں کے نشان اس جگہ موجود ہوں گے۔ ہم نے ولسن کو حوالات سے نکالا اور اسے پوچھا کہ اس کی موٹر سائیکل کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل اسے کمپنی نے دے رکھا ہے جو اس کے گھر ہے۔
ऐसा ना हो कि कंपनी ने अपना आदमी भेजकर मोटरसाइकिल मंगवा लिया हो। हम हम विल्सन को जीप में बिठाकर उसके घर ले गए। उसे हमने हथकड़ी नहीं लगाई थी। 2 कांस्टेबल साथ थे। उसके घर जाकर 2 पड़ोसियों के साथ लिया और उन्हें बताया कि विल्सन के घर की तलाशी ली जाएगी और वो उसके गवाह होंगे। विल्सन ने हमें अंदर जाकर मोटरसाइकिल दिखाया। मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने सबसे पहले मोटरसाइकिल के टायर देखे जो बिल्कुल नए थे। विल्सन ने पूछा तो उसने बताया कि 8-10 रोज़ पहले उसने ये नए टायर कंपनी से तब्दील करवाए हैं क्योंकि पहले दोनों टायर बहुत ही घिस गए थे। हम दोनों इंस्पेक्टर ये बात सुनकर खुश हुए कि उनकी घिसे हुए टायरों के निशान रेस कोर्स के बाहर देखे गए थे और विल्सन ही हमारा मुलजिम है। विल्सन ने पूछा कि घसे हुए टायर कहाँ हैं। इत्तेफाक देखें कि घसे हुए टायर विल्सन ने अभी घर में फेंक रखे थे और कहीं बाहर नहीं फेंक आया था। उसने कोड़ा कबाड़ के एक स्टोर से दोनों टायर निकालकर हमें दिखाए। मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने दोनों टायरों की बड़ी ही गौर से देखा। बाहर भी हाथ फेरे और अंदर भी, लेकिन वहाँ किसी टुकड़े के निशान नहीं थे। इन टायरों के निशान बिल्कुल साफ होते थे। बहरहाल गवाहों को दिखाकर हमने ये दोनों टायर अपने कब्जे में ले लिए। इंस्पेक्टर क्लार्क ने मुझे कहा कि वो वारदात में पिस्तौल इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इस घर की तलाशी ले लेनी चाहिए। मैं उसके साथ इत्तेफाक करते हुए तलाशी आगाज़ करने लगा। विल्सन ने हाथ जोड़कर मुझे कहा कि वो बेगुनाह है और उसकी इतनी बेइज्जती न की जाए। मैं रुक गया और उससे पूछा कि इसके पास एशारिया 22 का पिस्तौल है जनाब। विल्सन ने यह कहकर मुझे हैरान कर दिया। मैं आपको पिस्टल दिखा दूंगा और इसका लाइसेंस भी दिखाऊंगा। वो हमें एक कमरे में ले गया और एक अटैची खोलकर उसमें से पिस्तौल निकाल दिया। मैंने पिस्तौल की नाली देखी, इसमें तेल लगा हुआ था। हमने ये पिस्तौल भी कब्जे में ले लिया। मोटरसाइकिल के टायरों और पिस्तौल की बरामदगी की तहरीर लिखी और दोनों गवाहों के और विल्सन के उस पर दस्तखत करवा लिए। एक और मोटरसाइकिल विल्सन को हम वापस ले आए और फिर हवालात में बंद कर दिया। यह तो आप समझ गए होंगे कि पिस्तौल इसलिए बरामद किया था कि मकतूला के सर में एशारिया 22 की गोली मारी गई थी। मसला अब टायरों का रह गया था कि ये टायर अगर एएसआई अब्दुल रशीद देख लेता तो अच्छा था, क्योंकि ज़मीन पर निशान उसने देखे थे। लेकिन हम अब्दुल रशीद को सबके सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझते थे। इंस्पेक्टर क्लार्क को बताया कि अब्दुल रशीद की ज़रूरत नहीं। उसने मुझे कागज़ पर वो निशान बना दिए थे जो उसने ज़मीन पर देखे थे। विल्सन के मोटरसाइकिल के टायर ऐसा निशान नहीं छोड़ सकते थे। हमने पिस्तौल एक्जीमेज के पास भेज दिया कि वो देखकर रिपोर्ट दे कि इसमें से गोली अगर फायर हुई है तो कितने दिन पहले हुई है। उसके बाद में वो फिर इंस्पेक्टर क्लार्क के साथ अब्दुल रशीद की बताई हुई सारी बातों के मुतल्लिक तबादला ख्यालात करने लगा। मैं कहता था कि जो मोटरसाइकिल वहाँ गया था उसका एक्सीडेंट हुआ था। इंस्पेक्टर क्लार्क ने कहा कि ये वहाँ चलकर देखते हैं और सड़क की दूसरी तरफ जो दुकानें हैं और उन दुकानदारों से पूछते हैं। यह तो हमें एहसास था कि रात के वक्त दुकानें बंद थीं, लेकिन कोई आदमी ऐसा था जिसने अब्दुल रशीद को बताया था कि रात यहाँ एक मोटरसाइकिल और फौजी ट्रक की टक्कर हो गई थी। यह तो हमारे दिमागों का बड़ा सख्त इम्तिहान था। हम अपने तजर्बे और ज़हानत को यूँ ज़ोर देकर इस्तेमाल करने लगे जिस तरह खुश्क लीमू इस तोका पर निचोड़ा जाता है कि शायद एक आधा कतरा निकल आए। मैं ये भी आपको बताता हूँ कि सुराग रसा दिमाग कोई न कोई इशारा पा ही लेता है। या आखिर यही यही सुराग लेता है कि अब कोई सुराग नहीं मिलेगा। मैं और इंस्पेक्टर क्लार्क इस जगह पहुँचे जहाँ ट्रक और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था। यह जगह हमने पहले भी देखी थी जब हम वो जगह देखने आए थे जहाँ बोरी में बंद लाश पड़ी पाई गई थी। हम सड़क के पार दुकानों के पास चले गए। हम पुलिस के वर्दी में होते तो हमारा ज़्यादा रौब जमा लेकिन सीआईए के पुलिस ऑफिसर और दीगर अमला प्राइवेट कपड़ों में रहते थे। लेकिन एक अंग्रेज़ को साथ देखकर लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। दुकानें ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वो कम आबादी वाला इलाका था। चंद एक दुकानें थी और ये भी बड़ी आम सी किस्म के। हमने दुकानदारों को इकट्ठा करके याद दिलाया कि 20 रोज़ पहले रेस कोर्स से
बोरी बदलाश मिली थी और उसी रात एक मोटरसाइकिल और फौजी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उन्हें ये भी बताया कि हम सीआईडी के पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हम लोग सीआईए को नहीं समझते थे, वो सीआईडी को जानते थे। एक अधेड़ उम्र दुकानदार सामने आया। उसकी पान सिगरेट वगैरह की दुकान थी, जिसके पिछवाड़े में उसका छोटा सा मकान था, लेकिन रात वो अपनी दुकान के सामने चारपाई डालकर सोया करता था। उसने बताया कि रात 3 साढ़े 3 बजे का वक्त था जब वो पेशाब के लिए उठा। एक मोटरसाइकिल इस तरफ से बड़ा ही तेज़ आया जिधर बोरी बदलाश उगली सुबह मिली थी। मोटरसाइकिल जूं ही सड़क पर चढ़ा, सड़क पर एक फौजी ट्रक खासी तेज़ी रफ्तार से आ रहा था। इधर मोटरसाइकिल मुड़ा, उधर ट्रक पहुंच गया और मोटरसाइकिल सामने से ट्रक से टकरा गया और ट्रक ने बड़ी ही और ब्रेक लगाए और रुक गया। ये दुकानदार दौड़ा गया। एक तो चांदनी रात थी और दूसरे वही ऊपर खंबे से बल्ब जल रहा था। वो फौजी अच्छे लोग थे। मोटरसाइकिल वाला बेहोश हो गया था और वो बुरी तरह जख्मी हुआ था। फौजियों ने उसे उठाकर ट्रक में डाला और उसका टूटा फूटा मोटरसाइकिल भी ट्रक में रख लिया और उस दुकानदार से पूछा कि यहाँ कोई सिविल अस्पताल कितनी दूर है। इस दुकानदार ने उन्हें सिविल यानी सरकारी अस्पताल का रास्ता समझा दिया और ट्रक चला गया। ये फौजी वाकई अच्छे लोग थे, वरना जंग अजीम के दौरान फौजी गाड़ियों के ड्राइवर सड़कों पर बड़ी बदतमीजियाँ करते और ट्रैफिक को परेशान करते रहते थे। हाईवे पर जाती मुसाफिरों बसों को साइडें मार मार कर सड़क से उतार देते और कहके लगाते थे। मालूम नहीं इन फौजियों को किस तरह इस शख्स पर रहम आ गया और उसे अस्पताल ले गए। अगर मोटरसाइकिल वाला शदीद जख्मी था और बेहोश था तो उसे अस्पताल वालों ने दाखिल कर लिया होगा और इस सूरत में उसका नाम और पता भी लिख लिया होगा। हम अस्पताल जाकर एमएस से मिले, अपना तारुफ कराया और उसे बताया कि 20-21 रोज़ पहले रात के वक्त एक मोटरसाइकिल सवार को फौजी यहाँ लाए थे और वो शदीद ज़ख्मी था। हमें उसका रिकॉर्ड देखना है। उस हिंदू एमएस ने जब सीआईए का नाम सुना और जब एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर को देखा तो उसे चाबी लग गई और उसने उसी वक्त मुतल्लिका आदमियों को बुलाया, उन्हें बताया कि क्या दरकार है और वो अभी रिकॉर्ड लाएं। इस दौर में वैसे भी सरकारी एहलकार अपने काम में कोताही नहीं करते थे, लेकिन ये मामला पुलिस का था, इसलिए सब ने बड़ी तेज़ी से हरकत की और रजिस्टर हमारे सामने आ गए। इमरजेंसी का भी एक डॉक्टर आ गया। उससे बात हुई तो उसने बताया कि उस रात उसे इमरजेंसी में इसे की ड्यूटी थी और इसे याद है कि फ़ौजी एक मोटरसाइकिल सवार को बेहोश और शदीद ज़ख्मी हालत में लाए थे। ये भी जहन में रखें कि इस दौर में बीमारियों की हालत आज वाली नहीं थी कि मरीज़ को इमरजेंसी में ले जाओ तो इतना रश होता है कि जगह नहीं मिलती। उस दौर में ये बात नहीं थी। इमरजेंसी में और वार्डों में ज़्यादातर बेड खाली होते थे। इस ज़माने में सेहत का बायार खासा अच्छा था। मुख्तसर बात यह है कि मोटरसाइकिल वाले ज़ख्मी के घर का एड्रेस मिल गया और ये भी पता चला कि उसे डिस्चार्ज हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं। उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई थी और एक बाजू की टहनी से ज़रा नीचे हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। उसकी टांग पर और बाजू पर भी पलस्तर चढ़ा दिए गए और घर भेज दिया गया था। उसे 1 महीने बाद अस्पताल आकर पलस्तर उतरवाना था। डायरी में उस जख्मी का नाम रामा स्वामी लिखा हुआ है और वो दिल्ली का ही रहने वाला था। पुरानी दिल्ली के पास एक आबादी पहाड़गंज थी। रामा स्वामी उस आबादी में रहता था। मैं और इंस्पेक्टर क्लार्क अस्पताल से इस इलाके के थाने में गए और वहाँ के सब इंस्पेक्टर से कहा कि वो हमें उस एड्रेस पर पहुँचा दे। उस एड्रेस पर तो हम खुद भी इधर उधर से पहुँच सकते थे, लेकिन थानों के अक्सर कांस्टेबल महलों से वाकिफ़ होते थे, इसलिए हमने वक्त बचाने की खातिर थाने से मदद हासिल करना बेहतर समझा। उस सब इंस्पेक्टर ने जब ये नाम सुना तो वो सोच में पड़ गया और जहन पर जोर देने लगा। फिर उसने एक रजिस्टर खोला और बहुत से लिखे हुए नामों में ये नाम तलाश करने लगा। ये है आपका रामा स्वामी। उसने कहा, गलत किस्म की सियासी सरगर्मियों में मलूस है, एयर हेडक्वार्टर में क्लर्क है और इस पर तखरीब कारी का शक है। लोगों को हुकूमत के खिलाफ मुश्तैल करता रहता है और कांग्रेसी
वर्कर है। थाने के रिकॉर्ड पर भी उसका यही एड्रेस लिखा हुआ था जो हमें अस्पताल से मिला था। थाने में उसके रिकॉर्ड का मतलब यह था कि वो पुलिस की ज़ेर निगरानी था। सब इंस्पेक्टर ने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया कि हमें रामा स्वामी के घर पहुंचा दे। हेड कांस्टेबल ने कहा कि वो बड़ी बुरी हालत में घर पर पड़ा है, उसकी एक टांग और एक बाजू पलस्तर में है। हेड कांस्टेबल की ये बात सुनकर मैं समझ गया कि उस रामा स्वामी को रोज़ बरोज़ पोर्ट बंचर था। हेड कांस्टेबल की ये बात सुनकर मैं समझ गया कि उस रामा स्वामी को रोज़ बरोज़ रिपोर्ट मखबर थाने पहुंचाते हैं। सियासी मतलब ये कि ये शख्स सियासी मुश्तबा था। हेड कांस्टेबल हमारे साथ आ गया और हमें रामा स्वामी के घर तक पहुंचा दिया। दरवाजे पर दस्तक दी, एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। हेड कांस्टेबल ने कहा कि रामा स्वामी को देखने आए हैं। 13-14 साल उम्र के उस लड़के ने यूं न कहा कि वो रामा स्वामी को इतला देता है या ये कि आप अंदर आ जाएं, बल्कि वो अंदर को चल पड़ा। हम तीनों उसके पीछे अंदर आ गए। अंदर औरतें थीं जो हमें हैरत से देखने लगी। हमने उनकी तरफ तवज्जो न दी और लड़का जिस कमरे में दाखिल हुआ हम भी उस कमरे में चले गए। ये एक साफ़ सुथरा और अच्छे किस्म का मकान था। जिस कमरे में दाखिल हुए वहाँ सामने पलंग पर एक जवान साला आदमी लेटा हुआ था। हमें देखकर उठ बैठा। मैंने उसे कहा कि वो ज़ख्मी है, इसलिए ज़्यादा हरकत न करे और किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, और न ही वो घबराए। घबराहट तो फ़ौरन उसके चेहरे पर आ गई थी और वो आंखें फाड़े हमें देख रहा था। हेड कांस्टेबल ने हमारा तारुफ कराया। रामा स्वामी ने लड़के को आवाज़ देकर कहा कि फ़ौरन कुर्सियाँ लाएं। कुर्सियाँ आई और हम बैठ गए। रामा स्वामी का एक बाजू पलस्तर में जकड़ा हुआ नज़र आ रहा था। उसने टांगों से चादर हटाई तो टांग भी पलस्तर में जकड़ी नज़र आई। मैंने पूछा कि ये ज़ख्म कैसे आए थे? उसने कहा एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैंने पूछा कि एक्सीडेंट कब और कहाँ हुआ था? मेरी नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो आंखें दाएं बाएं करने लगा जैसे सही जवाब देने से गुरेज कर रहा हो। हुआ भी ऐसा ही कि उसने जगह कोई और बताई और वक्त के मुतल्लिक बताया कि उसे याद नहीं। वक्त मुझे याद है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रात 3 बजे का वक्त था और गालिबन तुम ये भी भूल गए हो कि एक्सीडेंट किसी और जगह हुआ था। मैं वो जगह भी बता सकता हूँ कि तुम बेहोश हो गए थे और सामने वाले दुकानदारों में से 2-3 पहुँच गए और उन्होंने तुम्हारा चेहरा बड़ी अच्छी तरह देखा था और अब भी तुम्हें पहचान सकते हैं। अब उसके चेहरे पर जो तब्दीली आई वो मैं अक्सर अपनी कहानियों में बयान करता रहता हूँ। ये तब्दीली उस वक्त आती है जब मुलजिम या मुश्तबा जान लेता है कि सब पर्दे उठ गए और अब वो पकड़ा गया है। इतना घबराने की क्या ज़रूरत है रामा स्वामी? मैंने कहा। कह दो कि तुम्हारे सर को इतनी शदीद चोट आई है कि तुम्हारे याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। लेकिन हम अस्पताल से हो आए हैं और जिन डॉक्टरों ने तुम्हारा इलाज किया है कि उनसे पूरी रिपोर्ट ले आए हैं। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही हालत में है। आखिरी बात क्या है? उसने ज़रा कांपती हुई आवाज़ में पूछा। एक्सीडेंट मेरी गलती से तो नहीं हुआ था। आप कैसी इंक्वायरी कर रहे हैं? हमें दरअसल दिलचस्पी उस मोटरसाइकिल के टायरों के साथ थी। अगर टायर सही और बेहतर हालत में थे तो उस शख्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने सोचा कि पहले उसके टायर देख लिए जाएं। उसके सवाल का जवाब दिए बगैर उससे पूछा कि उसका मोटरसाइकिल कहाँ है। उसने बताया कि मोटरसाइकिल को बहुत ही नुकसान पहुंचा है और घर में पड़ा है। मैंने कहा कि मोटरसाइकिल देखना चाहता हूँ। वो खुद उठने लगा तो मैंने उसे रोक दिया और कहा कि वो अपने आप पर जबर न करे, लड़के को बता दे कि हमें मोटरसाइकिल तक ले जाए। उसने लड़के को आवाज़ देकर बुलाया कि हमें मोटरसाइकिल दिखा दे। हम लड़के के साथ गए तो सामने एक बरामदे के कोने में दीवार के साथ उस ज़माने का बड़ा मोटरसाइकिल खड़ा था। वाकई उसे बहुत नुकसान पहुंचा था। मैंने सबसे पहले टायर देखे। पिछला टायर तो ज़रा अच्छी हालत में था लेकिन अगला टायर ज़्यादा घिस गया था। उस पर हाथ फेरा तो उस जगह हाथ रुक गया जहाँ से टायर एक साइड से ज़रा फटा हुआ था और बाहर से ही पता चल जाता था कि उसके अंदर टायर का टुकड़ा रखा हुआ है। ज़रा सा भी शक न रहा कि एएसआई अब्दुल रशीद ने जो निशान रेस कोर्स के बाहर देखा था ये उसी टायर का ही निशान था। ये निशान टायर के ज़रा बाएं तरफ था। कातिल कोई और ही निकला।